Assalamu alaikum, dear class. Hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the part 2 lecture of the lesson Why Boys Play in College. Yesterday we discussed the first two paragraphs, and today we'll be starting from the third paragraph. But before starting the third paragraph, let us recall or recapitulate yesterday's lecture. As the title itself is telling you why boys fail in college, the writer Herbert E. Hawks in this very chapter or in this very essay is actually exploring number of reasons behind the failure of the students. So yesterday we discussed two of the reasons. The one is lack of focus, because those students, though they are very bright, though they have all physical and mental capability to pass the exam, but even then they flunk. Why they flunk? Because they lack focus. The second very common cause of the failure of the students is mistaken ambition. Now, what does writer mean by mistaken ambition? Mistaken ambition is simply a choice of subjects made not by the student but rather by the parents. Now, because boy is not interested in those subjects, that is why he gets failed. So today we'll be starting the third paragraph, and dear students, we are on page number 8. So you better open up your books and be on page number 8, and this is lesson number 3 and paragraph 3. Before starting the paragraph or today's lecture, let me again remind you that your attendance is very important. You should fill the Google form and submit it so that your attendance record should be maintained. And do not forget to subscribe the channel so you will get notified about the daily lectures which are being uploaded. Okay, then, so let's start today's lecture. Paragraph 3, page number 8. Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. Now, here writer is talking about another kind of students. They are the students who are quite intelligent. Intelligent in a sense that they don't have to spend much time in learning things. कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं. इंटेलिजेंट से मुराद ये है कि वो थोड़े ज़हीन होते हैं, तो उनको चीज़ें सीखने में या अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो थोड़ी मेहनत से ही पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं उन्हें. अब प्रॉब्लम ये है, ऐसे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और फिर मेहनत वो करते नहीं हैं. जैसे उनको लगता है कि हर चीज़ बस वो पास कर लेंगे, जैसे वो अभी पास करते आए हैं. He supposes that he can float through college with a little effort as he did through school. Float means ऐसे आराम से बह जाना, मतलब without any resistance, फिसल जाना कहीं से, बहुत आराम से निकल जाना. तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या सब सोचते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने स्कूल पास कर लिया तो वो बहुत आराम से कॉलेज पास कर लेंगे. नाउ यू ऑल नो दैट इन स्कूल वी आर इन लेसर ग्रेड्स. हमारी जो क्लासेस होती हैं वो छोटी होती हैं, तो थिंग्स आर सिंपलर ओवर देयर. बट द मोर यू गो हायर, द मोर थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स. जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते हैं, आप कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद आप यूनिवर्सिटी जाएँ, जो चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती, मुश्किल होती चली जाती. तो यू नीड टू पुट एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड दैम. आपको उन्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन ऐसे बच्चे जो ज़हीन होते हैं वो समझते हैं कि मेहनत की ज़रूरत नहीं है. दे आर ब्राइट इनफ टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग. उन्हें लगता है बस जी बहुत हम ज़हीन हैं तो हम ये काम आसानी से कर लेंगे, जैसे हमने स्कूल में कर लिया. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर इन दिस वेरी चैप्टर, कॉलेज मीन्स यूनिवर्सिटी ऑल्सो, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कॉलेजेस ही कहा जाता है. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable of object among all our failing students. राइटर कहते हैं सर्टेन टाइम में ऐसा सोचता हूँ, कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी, मतलब दे हैव ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन देयर ओन एबिलिटी, दे नेवर ट्रस्टेड एनीवन एल्स, दे नेवर ट्रस्टेड एनी अदर थिंग एल्स.
कभी वो किसी और पे भरोसा नहीं करते, वो पहला भरोसा किस पे करते हैं? अपनी एबिलिटीज़ पे। हाँ जी, मैं बहुत ज़हीन हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं वो बच्चे। तो जब ऐसे बच्चे फेल होते हैं तो फिर ये बहुत ही एक पिटी का मकाम होता है, बहुत ही ज़्यादा तरस का। ऐसे बच्चे एक उनकी ज़ात का भरम टूट जाता है, एक डिसरिस्पेक्टफुलनेस उनके अंदर क्रिएट हो जाती है अबाउट देमसेल्फ, अपने ही लिए, और वो अपने ऊपर यकीन भी खो देते हैं सर्टेन टाइम। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students, for it is most tragedy to see all of his keenness going to waste. क्यों क्यों है ये पिटिएबल क्यों है? क्यों तरस आता है ऐसे बच्चे पे? क्योंकि जो तमाम कीननेस है, कीन मतलब वो जो इतनी तवज्जो से, या वो उनको उनको जो अपने ऊपर इतना भरोसा था, वो सारा जो है वेस्ट हो जाता है। एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विद द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज पास्ड अप बिकॉज ऑफ आर टू रिसेप्टिव माइंड। और ये इसलिए भी पिटिएबल है कि जो कुछ भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस बच्चे को ऑफर कर पाता, या उस इंस्टीट्यूशन में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो उसको पॉलिश कर लेता, लेकिन वो सब चीज़ें वेस्ट हो गई। क्यों? बिकॉज दैट बॉय हैज़ अ टू रिसेप्टिव माइंड। टू रिसेप्टिव मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिसीव करने वाला, फ़ौरन से चीज़ों को अडाप्ट करने वाला। अब चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जहानत पे भरोसा करता है, ख़ुद से मेहनत नहीं करता, तो इसलिए क्या होता है, उसको वो फेल हो जाता है। The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude. Again, इस मसले का हल बहुत आसान नहीं है according to writer, because you have to change your entire attitude. आपको अपना नज़रिया चेंज करना होता है, आपको अपना रवैया चेंज करना है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है इसके लिए। All that the rest, okay, sorry, I missed the line. Let me search it. Okay. The cure of this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habits. ये बिल्कुल ऐसा ही है that you have to restore your habits. आपको अपनी जो हैबिट्स हैं वो डिलीट करके दोबारा नई हैबिट इंस्टॉल करनी होती हैं, ये समझ लें आप। तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी टफ जॉब, एंड हु कैन डू दिस? ओनली द पर्सन हु नीड्स टू चेंज। एक वही बच्चा कर सकता है, वही लड़का खुद से कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से उसको चेंज कर पाएँ। सो द राइटर इज सेइंग दैट no one can do this but the boy himself. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. उसने चेंज खुद ही होना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए, या ऐसे बच्चों की डायरेक्शन को सही करने के लिए? वी कुड पॉइंट आउट दैट वेयर दे आर मिस्टेकन। हम ये बता सकते हैं कि बेसिकली उनकी गलती है कहाँ। The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. Another very important factor writer is discussing here. ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो कुंज़हन हैं, या उनमें फ़ोकस नहीं है, या वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। सर्टेन टाइम देयर आर हार्ड फिज़िकल एंड मेंटल रीजंस। सर्टेन टाइम आपकी बॉडी जो है वो सफ़र कर रही होती है, आप हेल्दी नहीं होते इसलिए फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, या आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। If an adequate health service is available in the college, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided. Now, writer is saying that this situation could be handled. अगर बच्चा कोई मेंटल इलनेस फेस कर रहा है, या उसको कोई फिजिकल इलनेस फेस कर रहा है वो, तो ये चीज़ जो है वो मैनेज हो सकती है। किस तरह मैनेज हो सकती है? इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर मेडिकल सिस्टम विद इन द कॉलेज। अब आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कॉलेजेस में डॉक्टर्स भी होते हैं और जनाब क्लिनिक्स भी होते हैं, तो दे टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्थ, नॉट ओनली देयर फिजिकल हेल्थ बट आल्सो देयर मेंटल हेल्थ। तो राइटर भी ये कह रहे हैं अगर टीचर कोऑपरेट करें और डॉक्टर सही से उनको ट्रीट करें तो ये जो मसला है ये हल
हो सकता है। And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy. Another very important thing is that when the person is physically ill or mentally ill, if he is given right treatment, not only he will get a better grade, but he will come to know that actually he was lacking in his health. उसको पता लगेगा उसके उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह। तो बेसिकली राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जब कॉलेज इंटरवीन करेगा और कॉलेज का मेडिकल स्टाफ इंटरवीन करेगा, उस बच्चे को देखेगा, उस बच्चे को ट्रीट करेगा, तो उसके जो ख़राब रिज़ल्ट आ रहा था जिसकी वजह से उसको ब्लेम किया जा रहा था बच्चे को, तो स्टूडेंट को भी पता लगेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि बच्चे को ये फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उसके ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं या उसकी एकेडमिक जो वर्क है वो पुअर है। ठीक है, आगे देखिए राइटर क्या कह रहे हैं। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क द रीजन फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सी बीइंग द टीचर इट इज़ ही इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस। राइटर बता रहे हैं कि जब मैं किसी ऐसे बच्चे को देखता हूँ जिसके पुअर ग्रेड्स आ रहे हैं या जिसकी अच्छी पढ़ाई में वो अच्छा नहीं जा रहा, एंड देयर इज़ नो अपेरेंट रीज़न फॉर दैट, और कुछ ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो फिर राइटर ऑलवेज एडवाइज द स्टूडेंट टू गो फॉर द मेडिकल चेकअप। तो राइटर ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट को क्या कहता हूँ कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, क्योंकि हो सकता है उन्हें कोई ना कोई मसला हो उनकी फिजिकल हेल्थ में। It is surprising to find out in how large percentage of such cases the university physicians find an adequate reason for the difficulty. तो वो कहते हैं राइटर कि ये बड़ा हैरान कुन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी जो होती है स्टूडेंट्स की, वो बेसिकली उनके जो पुअर ग्रेड्स हो रहे होते हैं या उनकी जो अच्छी कारकर्दगी नहीं होती, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीमार होते हैं फिजिकली, एंड दीज आर मोस्टली ट्रीटेड बाय द यूनिवर्सिटी फिजिशियंस। फिर यूनिवर्सिटी फिजिशियंस उनको ट्रीट करते हैं। ओके जी, सो यस, राइटर इज सेइंग ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं राइटर बता रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज टीबी। ट्यूबरक्लोसिस बैड टॉन्सिल्स। ओके, आपके टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हों तो ये भी बड़ा एक मसला है, आपको बुखार आता रहता है अक्सर। स्लीपिंग सिकनेस, यू कैन नॉट स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। पुअर डाइजेशन, योर GIT इज डिस्टर्ब, योर डाइजेशन सिस्टम इफ इट इज डिस्टर्ब, you won't be able to sleep properly, you won't be able to focus, वेरियस फॉर्म ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिसबिलिटी। अच्छा, अभी तक तो उसने जो बीमारियां बताई थी राइटर ने वो फिजिकल बीमारियां थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मेंटल इलनेसेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, इस किस्म की कोई नर्वस डिफ़िकल्टी है। सो राइटर इज सेइंग ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, वेरियस फॉर्म ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी हैव बीन ब्रॉट टू लाइट बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अभी पिछले चंद महीनों में ये सारी जो बीमारियां ये बताई गई या डॉक्टर्स ने जब स्टूडेंट्स को ट्रीट किया तो उन्हें पता लगा इन बच्चों को ये बीमारियां थी जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट एंड एनलाइटमेंट ऑफ द फैकल्टी। और इससे क्या हुआ कि इट रिलीव्ड स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स को पता लगा कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग टू मच हार्ड वर्क he is getting very low grade, so when that student comes to know that it is actually because of my my illness, so he would become relieved. Why he becomes relieved? Because he knows that once I am treated there won't be any problem with my studies. देखिए, जब मसले की वजह पता चल जाती है तो बंदे को आधी रिलैक्सेशन हो जाती है, क्योंकि आपको वजह पता चल गई तो यू कैन क्योर इट, अब आप उसको ठीक कर सकते हैं।
तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट खुद भी रिलैक्स होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह भी फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मसला ये इस तरह ट्रीट हो जाएगा। और फिर फैकल्टी जो है, टीचिंग फैकल्टी, दे ऑल्सो गेट एनलाइटेड, और उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें भी पता लगता है, न्यू न्यू एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, या वो भी रिलैक्स हो जाते हैं कि इस बच्चे के साथ बेसिकली ये मसला है। ओकेजनली, कभी कभार, वन meets an old-fashioned person like the father who had told me a few months ago that although we had arranged to have his son's nostril removed without expense, he would not consent to the operation. Now these are the problems. Writer is sharing with us. वो कहते हैं कि बहुत बार, ओकेजनली, कभी कभार होता क्या है कि वी सी दैट student is suffering, or a student is not doing his best. So when we examine him, when we analyze him, we come to know that actually he is suffering from a kind of disease. ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चों को कुछ होता। अब मसला तब आता है कि ओकेजनली, कभी कभार क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का इलाज कराने के लिए कंसेंट नहीं देते, अप्रूवल नहीं देते, वो उसकी इजाज़त नहीं देते कि उनके बच्चों का इलाज कराया जाए। जैसे राइटर कह रहे हैं कि इनका एक स्टूडेंट था, उसको नॉस्ट्रल रिमूव करने थे, तो उन सॉरी टॉन्सिल्स रिमूव करने थे। तो जुनाब जो हैं, उनके पेरेंट्स ने कोई कंसेंट नहीं दिया। पेरेंट्स ने कहा कि हम इसके जो टॉन्सिल्स हैं वो रिमूव नहीं करने देंगे, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई। ही असर्टेड दैट Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose, and that he would not stand for their removal. Now, there are certain beliefs, certain lame beliefs. I won't say lame beliefs, but a kind of misguided beliefs are behind it. हर इवन रिलीजन में होते हैं, हमारे पास कल्चरल सुपरस्टिशन होती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से थोड़ा रोक देती। तो वो क्या बात कर रहे हैं अपने उसी स्टूडेंट की, वो कहते हैं कि उसके फादर ने कहा कि चूँकि अल्लाह ने वो टॉन्सिल उसके अंदर रखे हैं, तो इनको रिमूव करना क्या हो सकता है, कोई गुनाह हो सकता है, तो लिहाजा मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम। फिर क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चा सफ़र कर रहा था, उसके टॉन्सिल्स बहुत इन्फेक्टेड थे, ख़राब थे, और उसके फादर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो उस बच्चा जो था वो बहुत ही पेन में था, और इसीलिए हमने उसे कहा कि वो घर चला जाए, उसे घर भेजिए। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, लेकिन ये कहते हैं ऐसे केसेस रेयर होते हैं, रेयर माने बहुत कम होते हैं। But it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health. Now, this is very important line. He is summing up the whole paragraph, and he is saying that it is very necessary. बहुत ही ज़रूरी है ये कि अपने जहन में रखा जाए क्या बात कि हेल्थ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। वंस हेल्थ इज़ गॉन, यू आर एक्चुअली इन अ बिग ट्रबल। हेल्थ इज़ वेल्थ यूजुअली सेड। तो हेल्थ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना अपनी हेल्थ पे। एंड दैट हाउएवर सच अ मैन में नो इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस ही possesses द फिजिकल विगोर टू ब्रिंग इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। और इंसान अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। एक शख्स जो है वो, उसको पता ही नहीं होगा उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या वैल्यू है, अनलेस ही possesses फिजिकल विगोर। जब तक उसकी फिज़ीक ठीक नहीं होगी, उसका जिस्म सेहतमंद नहीं होगा, तब तक वो अपने दिमाग से अच्छा काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ सेइंग, एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है कि a healthy body contains a healthy mind। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड हो सकता है, और हेल्दी माइंड क्या है, वो सेहतमंद दिमाग जो दुनिया के प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करे और फिर उसको सॉल्व करे। So we are done with paragraph number 4. Tomorrow we'll continue with paragraph number 5. I think we should end our lecture here. Hope you have got the point, or if there is any confusion, query, or any question, you may drop in the comment section and I'll answer you over there. Until tomorrow, thank you very much. Allah Hafiz.